students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study our human resources. Points to study: human resources, importance of human resources, distribution of population, overpopulation. Ready, steady, start. Before reading the lesson, your teacher will tell you why people are called the resource. ये आप खुद से करेंगे. Human resources. The population of a country is known as human resources. Though natural resources are very precious, but they are useful only because of men who utilizes them for the benefit of people and the whole country. To use natural resources judicially, a country needs skilled and educated people who know how to convert these resources into useful goods. Thus, the people of a country are its greatest resources. Okay, देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? एक कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसे बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज. और ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एक ह्यूमन को इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए. ओके, उसे ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज को यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है. ओके, नाउ क्रिटिकल थिंकिंग. What will happen if there are no trained or skilled people? ये आप खुद से करेंगे. After independence, progress has been made in the agriculture and industrial sector. In different parts of the country, schools, colleges and hospitals have also been opened. But still, half of the people of the country are very poor. They do not get enough to eat. One of the reasons for such poverty is the increasing population. Another is the unequal distribution of wealth. Okay, देखिए इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस जो 15 अगस्त 1947 को इंडिया को मिला था, उसके बाद से प्रोग्रेस जो है वो बड़ी है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल एरियाज में. ओके, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स हमारे, जैसे कौन कौन से डिफरेंट पार्ट, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें खोली गई हैं. और लेकिन स्टिल हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी पुअर हैं. हमारी कंट्री में पोवर्टी मतलब कि गरीबी क्यों है? इसका रीज़न ये है कि प्रॉपर वेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई है. ओके, लोगों को जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो बढ़ती जा रही है. आपको अगर पता होगा तो इंडिया जो है उसकी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वर्ल्ड में. ओके, नाउ एट प्रेजेंट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ओवर 1 बिलियन. इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके, आज के टाइम में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन है और इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की. ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. Human resources are important for the development of both the country as well as the individuals. Highly educated and trained people can produce more and assist other people in improving and using their capacities. A country is regarded as prosperous if there are plenty of natural resources. However, to make use of these resources, skilled population is required. Skilled people convert those natural resources into economic resources. ओके, देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक कंट्री के को अपग्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ओके, ग्रोथ देने के लिए. नाउ अगर हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है और उस कंट्री में अगर हाईली एजुकेटेड पीपल हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनॉमिक वे में प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं. ओके, नाउ distribution of population. The distribution of population in India is quite uneven. Areas which have industries and plenty of employment are thickly populated. Some areas are very few people living in them because they have lesser rainfall and unfertile land. The average density of population in India is 382 people per square kilometer. Uttar Pradesh is the most populous state in India while Sikkim is least populous. Okay, देखिए
डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन की जगह जगह पे हमारी कंट्री में वो अनइवन है। ओके, वो एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और लैंड की जो फर्टिलिटी ज़्यादा है वो एरियाज जो है वो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज है, और वो एरियाज लेस पॉपुलेटेड हैं जहाँ पे लैंड की फर्टिलिटी कम है या फिर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं। नाउ हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, कोई एवरेज डेंसिटी किसी पॉपुलेशन की जो है पर स्क्वायर किलोमीटर, वो है 382 पीपल। ओके, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया है और सिक्किम जो है वो लेस पॉपुलेटेड स्टेट है। ओके, ओवर पॉपुलेशन, a country is said to be overpopulated when number of unproductive people is more than productive people. The increasing population leads to shortage of food, water, houses, schools, colleges, hospitals and jobs. Some people lead a better life and become rich, while some get a smaller share, while some do not get anything at all. These people remain poor and need to be taken care of. The government is taking the following steps to help the poor. Okay, देखिए हमारी कंट्री जो है वो ओवर पॉपुलेटेड है, जैसे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में हमारी कंट्री की। तो ओवर पॉपुलेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं उसमें अनप्रोडक्टिव पीपल भी होते हैं और प्रोडक्टिव पीपल भी होते हैं। नाउ जो अनप्रोडक्टिव पीपल होते हैं वो ज़्यादा योगदान कंट्री को नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिव होते हैं वो योगदान देते हैं कंट्री को। जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो शॉर्टेज आती है चीज़ों की, जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, जॉब्स हो गए, फूड हो गया। ओके, इन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस तरीके की जो शॉर्टेज आ रही है और जो अनप्रोडक्टिव पीपल हैं उन लोगों का ध्यान रखना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है टेक केयर करने के लिए, जैसे कि बाय प्रोवाइडिंग free education to children, free medical centers and health centers to be opened in villages and towns, construction of houses to be provided on the poor, more jobs are being given to the poor. Okay, देखिए जैसे कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसके अलावा हेल्थ केयर, मेडिकल सेंटर्स विलेजेस और टाउन्स में ओपन किए गए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है लोगों को, पुअर लोगों को। ओके, नाउ कुछ जॉब्स भी प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा बट एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू हेल्प द पुअर पीपल आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन शुड ऑल्सो बी चेक्ड। For this purpose, the Indian government has started many programs to check the population growth in India. Family planning program, spread of education, increasing age of marriage and spread of social consciousness are some examples of government efforts to control the population growth in India. If people are aware of the problem, they can help in achieving the goals of these government programs. Okay, देखिए, okay. गवर्नमेंट्स काफ़ी सारे जो हैं वो एफ़र्ट्स डाल रही है पुअर लोगों के लिए, लेकिन जितने भी अभी हमने एफ़र्ट्स पढ़े जो वो पुट ऑन कर रही है, वो सारे एफ़र्ट्स जो हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को रोकने के लिए या फिर उनको कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये कंट्री के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है कि ये सब प्रोवाइड करा दिया और इसकी वजह से जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो ऐसे ही रहेगी और खुद कुछ नहीं करेगी। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए कुछ और मेजर स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन किए हैं जिसमें है फैमिली प्लानिंग प्लान, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज, मैरिज का जो साल है लोगों का वो बढ़ा दिया है। जैसे कि पहले 18 से पहले करा दिया करते थे शादी, फिर 18 कर दिया, फिर 18 के बाद 21 ईयर्स कर दिया गया। ओके, इस तरीके से ये सारे स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए कि पॉपुलेशन जो है वो कम होनी चाहिए, तभी जाके जो ग्रोथ है वो प्रॉपर वे में हो पाएगी। ओके, कीवर्ड्स: पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन अ प्लेस; शॉर्टेज, स्कार्सिटी। Let's recapitulate. The population of the country is known as human resources. The people of the country are its greatest resource. The distribution of population in India is uneven. The increasing population leads to shortage of food, house, clothes, shelter and jobs.
The Indian government has started many programs to control the population growth in India. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.